اس دوران میں ایک خاص قسم کا جاب کرنا چاہتا ہوں۔ ایشور نے کچھ تو تمہیں اس کا کارن بتایا ہوگا۔ بھولے ناتھ نے ایک خیال کے تحت پوچھا۔ نہیں، انہوں نے ساری روداد سن کر صرف یہی کہا کہ وہ اپنے ایک خاص جاب میں مصروف ہیں، اس لیے انہوں نے فوراً آپ کے پاس پہنچنے کے لیے زور دیا اور ساتھ یہ بھی تاکید کی کہ جس قدر ہو سکے آپ کے پاس پہنچ کر اس کا کوئی اپائے تلاش کیا جائے۔ اس لیے جیسے ہی انہوں نے ہدایت کی، میں بغیر وقت ضائع کیے آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ نرائن تفصیل بتا کر خاموش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری واپسی کے لیے بندوبست کرتا ہوں۔ تم فوراً مورت نگر پہنچ کر راجہ بہرام داس کو تسلی دو۔ میں 2 روز پہلے پہنچ کر اس کا کوئی نہ کوئی اپائے تلاش کروں گا۔ بھولے ناتھ نے یہ کہتے ہوئے ڈھانچے کو اشارہ کیا۔ ڈھانچہ سر ہلاتا ہوا اندر کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک انسانی ہڈی تھی۔ اس نے وہ ہڈی بھولے ناتھ کو تھمائی اور ایک جانب جا کھڑا ہوا۔ ہڈی ہاتھ میں لیتے ہی بھولے ناتھ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا اور پھر اسے نرائن کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لو، اسے اپنے سیدھے ہاتھ میں تھام لو اور گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر اپنی آنکھیں بند کر لینا اور اس وقت تک آنکھیں مت کھولنا جب تک گھوڑا اپنے آپ رک نہ جائے۔ جیسے ہی گھوڑا رکے گا تمہارے ہاتھ سے یہ ہڈی غائب ہو جائے گی۔ بس پھر تم اپنی آنکھیں کھول لینا، تم خود کو اپنی ریاست کے بالکل قریب پاؤ گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہڈی اسے تھما دی، جسے نرائن نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ پھر وہ دونوں چلتے ہوئے کھنڈرات سے باہر نکل آئے۔ ڈھانچہ ان کے پیچھے نہیں آیا تھا۔ شاید بھولے ناتھ نے اسے وہیں رکنے کا اشارہ کر دیا تھا۔ کھنڈرات کے باہر اس کا گھوڑا وہیں کھڑا تھا جہاں نرائن اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ اپنے مالک کو دیکھ کر وہ خوشی سے ہنہنایا۔ نرائن نے اسے تھپکی دی اور پھر بھولے ناتھ سے ہاتھ ملا کر اچک کر گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور آنکھیں بند کر کے اس کو ایڑ ماری۔ ایڑ مارتے ہی گھوڑا ایک دم ہوا میں اچھلا اور نرائن کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ تیز آندھی میں اڑا چلا جا رہا ہو۔ اس کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ اسے اپنا جسم بار بار گھوڑے سے نیچے کی جانب گرتا محسوس ہو رہا تھا، جسے سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا تھا، لیکن ایک ماہر گھڑ سوار کی طرح وہ خود کو سنبھالے ہوئے تھا۔ جلد ہی گھوڑے کی رفتار آہستہ ہونے لگی اور پھر جیسے وہ ایک جگہ رکا، اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہڈی اچانک غائب ہو گئی۔ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ اپنی ریاست کے قریب ہی کھڑا تھا، جو فاصلہ اس نے ایک دن رات کی مسافت سے طے کیا تھا۔ وہی فاصلہ منٹوں میں طے ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ گھوڑے کو چلاتا اپنے محل کی جانب بڑھنے لگا۔ صبح ہونے میں ابھی خاصا وقت تھا، اس لیے گلیاں اور بازار سنسان پڑے ہوئے تھے۔ ہر طرف ایک خاموشی سی طاری تھی اور لوگ نیند کے مزے لوٹ رہے تھے۔ جلد وہ اپنے محل کے نزدیک پہنچ گیا۔ گھر کے افراد سوئے ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے
पहरेदारों से कहा कि अपने पिता को उठाओ, तो उसके साथ साथ उसके घर के दीगर अफराद भी अपने आप उठ गए। उसने उन्हें तमाम वाकया सुनाया और साथ ही ये भी बता दिया कि चांद की 12 तारीख को भोलेनाथ बजाते खुद यहाँ आएगा और फिर वो सब हमेशा हमेशा के लिए पुरस्कार बला से निजात पा जाएंगे। दूसरे रोज उन्होंने तमाम रियासत में ये ऐलान करा दिया कि एक ज्ञानी चांद की 12वीं तारीख को नारियों की गुमशुदगी के बारे में कोई अपाय करने आ रहा है, इसलिए तमाम नगर वासियों को ये अतला दी जाती है कि वो बेफिक्र होकर अपने अपने काम काज करें और किसी के किस्म के खौफ से घबरा कर अपने भरे पूरे घरों को यूं छोड़कर कहीं ना जाएं, और ये कि बहुत जल्द इस मुसीबत से निजात मिलने वाली है। राजा के इस ऐलान के साथ ही पूरी नगरी में खुशी की लहर दौड़ गई और इस ऐलान के दूसरे दिन वो लोग जो घबरा कर अपने घरों को खैरबाद कह चुके थे वापस लौटने लगे। दूसरी जानब चांद की 12 तारीख को भोलेनाथ अपने वादे के मुताबिक मूरत नगर पहुंच गया और उसके इस्तकबाल के लिए राजा बहराम दास और उसके दोनों बेटे सरहद पर पहुंचे हुए थे। वो उसे इज्जत व एहतराम से महल ले आए। भोलेनाथ अपने साथ एक उल्लू और एक चर्मी थैला लाया था जिसमें ना जाने क्या कुछ भरा हुआ था, और वो उल्लू आम उल्लुओं की जिस्म से बड़ा था। उसकी बड़ी बड़ी और लाल अंगारा आंखों की तरफ देखकर जिस्म पर कपकपी तारी होती थी। राजा ने उसे रहने के लिए महल के दाएं जानब एक कतार में बने कमरों में से एक कमरे में रहने के लिए बंदोबस्त कर दिया था। कमरे में जरूरत की हर चीज पहले से ही रखवा दी गई थी, लेकिन भोलेनाथ ने ये कहकर कि इनसे इन मादी चीजों से कोई सरोकार ना है, इन्हें उठवा लिया जाए, इन सब के लिए बहुत हैरान कुन था। बहरहाल उन्होंने ज्यादा जोर देना मुनासिब ना समझा। बाद में उसने खुद को तन्हा छोड़ने का कहा और वह सब उसे वहीं छोड़कर वापस लौट आए। ये चांद की 13 तारीख थी। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे। इस कदर अंधेरा था कि 1 फुट के फासले तक की चीज वाज़ेह दिखाई ना दे रही थी। दूर जंगल से कभी कभी गीदड़ों और लगड़ बगड़ों के चीखने की आवाजें सुनाई दे जाती थीं। चारों तरफ हू का आलम तारी था। बहुत ही लर्जा देने वाली शब्द थी। इस भयानक और पुरस्कार खामोशी में भोलेनाथ एक जानब बढ़ा जा रहा था। उसके दाएं कंधे पर उसका उल्लू बैठा हुआ था और बाएं कंधे पर उसने एक चादर डाली हुई थी। उसने एक हाथ में मिट्टी की हंडिया उठाई हुई थी जिसके मुंह पर एक सफेद कपड़ा बंधा हुआ था। रात के अंधेरे में वो यूं आगे बढ़ा चला जा रहा था जैसे दिन का समा हो। चलते चलते वो एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे जाकर ठहर गया और उल्लू को हाथ से हल्की सी थपकी दी। उल्लू फौरन उसके कंधे से उड़कर बरगद की एक शाख पर जाकर बैठ गया। भोलेनाथ ने चादर कंधे से उतारकर जमीन पर बिछा दी और हंडिया को अपने सामने रखकर खुद आलती पालती मारकर चादर पर बैठ गया। फिर आंखें बंद करके मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाने लगा। उल्लू खामोशी से बैठा उसे देख रहा था। कुछ देर तक वो जाप में मसरूफ रहा और फिर उसका जिस्म यूं लर्जने लगा जैसे उसको बिजली का नंगा तार छू गया हो। चंद लम्हों तक यही कैफियत रहने के बाद उसने यकदम अपनी आंखें खोल दी और हंडिया पर एक फूंक मार दी। फूंक पड़ते ही उस पर बंधा हुआ कपड़ा गायब हो गया और उसमें से धुएं की एक लकीर निकलकर दरख्त की शाखों की तरफ बढ़ने लगी।
धुआं जैसे ही दरख्त के अंदर पहुंचा, उल्लू चीखते हुए उसकी शाख से उड़का और लहराता हुआ भोलेनाथ के कदमों में आन गिरा। भोलेनाथ ने लपक कर उसको काबू किया और जल्दी से जेब से एक तेज धार खंजर निकालकर उसकी गर्दन पर फेरा और गर्दन तन से जुदा करके दूर फेंक दी। फिर जल्दी से उसके मुर्दा जिस्म को हाथों में उठाकर हंडिया के ऊपर कर दिया। उल्लू का मुर्दा जिस्म से गाढ़ा गाढ़ा खून निकलकर एक धार की सूरत में हंडिया में गिरने लगा और जैसे ही उसके खून से आधी हंडिया भरी, भोलेनाथ ने उसके जिस्म को परे फेंक दिया और जेब से एक कागज की पुड़िया निकालकर उसको खोला और उसे हंडिया में उंडेल दिया। ये एक सदी पुरानी कब्र के मुर्दे की हड्डियों से हासिल किया गया सफूफ था, जिसे बड़ी मुश्किल से उसने हासिल किया था। वो चौका पहले से ही ये सब बंदोबस्त करके चला था, इसलिए उसे यहाँ किसी किस्म की कोई परेशानी ना हुई। उसने अपने तौर पर हिसाब लगाने की पूरी कोशिश की थी कि उसी तरह उन पेश आने वाले अजीबोगरीब वाकयात का पता लग जाए, मगर उसे सिवाय इसके कोई बात मालूम ना हो सकी कि यह सब एक पुरस्रार परिंदे की कारस्तानी है। बाद में उसने अपने गुरु से राब्ता किया और उसे तमाम हालात बताए। जवाब में उसे एक खास जाप करने के बारे में कहा गया, जिससे उसके कब्जे में एक रूह आ जाती है, जिससे वो इस परिंदे को हलाक करने में मदद ले सकता है। फिर उसने गुरु महाराज के कहने के मुताबिक एक भयानक और तारीक गार में इंसानी खोपड़ियों पर बैठकर और 2 मासूम बच्चों का खून पीकर एक जाप किया था, जिसके जवाब में उसके कब्जे में एक रूह आ गई थी और उसके बाद वो मूरत नगर पहुंचा था। अशोर से उसका बहुत पुराना याराना था। एक बार वीरान इलाके में उसके पीछे एक खौफनाक रूह लग गई थी और उसे अपनी जान बचाना मुश्किल हो गई थी कि अचानक अशोर ने वहां पहुंचकर उसे उस रूह से बचा लिया था। उस दिन के बाद वो अशोर का दम भरता था और अब जबकि अशूर ने उसके लिए काम लेने के लिए कहा था, तो वो भी बेधड़क उसका काम करने के लिए तैयार हो गया था। उसने जैसे ही पुड़िया खोलकर हंडिया में उंडेली, यकायक उसमें से निकलने वाले धुएं का रंग गहरे सुर्ख रंग में तब्दील हो गया और फिर देखते ही देखते उसने नारंगी शोलों का रूप धार लिया और उसके अंदर एक रूह की छवि उभरने लगी। वो सफेद लिबादे में मलबूस एक रूह थी, जिसका बदन शीशे की मानद नजर आ रहा था और उसके दोनों तरफ देखा जा सकता था। उसने चेहरे पर एक लंबा सा घूंघट निकाला हुआ था और उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि यह किसी मर्द की रूह है कि किसी औरत की। वो जिस्मानी तौर पर तो पूरी बाहर थी, लेकिन उसके पांव हंडिया के अंदर ही थे और वह दिए की लो की मानद थरथरा रही थी। उसके हाथों के नाखून कांटों की मानद थे और चेहरा मुकम्मल तौर पर घूंघट में छुपा हुआ था। आशमाल हाजिर है महाराज। रूह के मुंह से एक मरी आवाज निकली। क्षमा हो महाराज कि मुझे मलोना मंदिर के पुजारी से इजाजत तलब करने में देर हुई। कोई बात नहीं आशमल, तुम्हें किसी किस्म की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमें खुशी है कि तुम आ गईं। अब मेरी तरफ गौर से देखो और अपना चेहरा दिखाओ। भोलेनाथ ने खुशी से झूमते हुए उससे कहा। यह सुनते ही रूह ने हाथ से घूंघट उलट दिया और भोलेनाथ, जो बड़े तजस्सुस से उसकी तरफ देख रहा था, एक झटके से पीछे की जानब गिरते गिरते बचा। घूंघट उलटते ही उसका भयानक चेहरा अपनी तमाम तर वहशत के साथ उसके सामने आ गया था। Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly